Hello students, we are discussing about chromosomes. In previous lecture I have discussed about structure of chromosomes, nucleosome, and today I will go with procreate chromosomes, means bacterial chromosome and then viral chromosome and then shapes of the chromosomes. So let us start the topic. As you already know about the structure of chromosome, I think try to remember the structure of chromosomes. I am drawing it here. That is the centromere. These are the arms. These are chromatids. Arms are also called chromatid. Inside that chromatid or arms, there is chromomeres present. That is chromomere present. In chromomere, you observe that bead-like appearances, that's why it's called chromomere. Colored granules. Okay. Now, that is nothing. This is the calling phase of the DNA, genetic material. In that genetic material, there are presence of nucleosome in these rounded structure or bead-like structure or granule-like structure, or you can draw this small portion like this. Okay, that is nucleosome. These are large number of nucleosomes present at here in chromonema, and that is nothing, that is a genetic material, and that whole structure is called, it's the chromosome structure. That is the basic structure of the chromosome. Now at here, as you know, this type of structure generally found in eukaryotes. But if we have to study the structure in prokaryotes, for example in bacteria, what type of structure is present? Or in virus, what type of structure is present? Let us start with the virus. The chromosome in virus is called viral chromosome or virus chromosome. What happened in virus? The genetic material as a whole act as a chromosome. In virus, genetic material may be RNA or may be DNA. If RNA or DNA is genetic material, then it is called RNA virus or DNA virus. Or you can say DNA virus or deoxyribovirus, or RNA virus or ribovirus. These are different names of the virus. And chromosomes, the present in them is genetic material. It may be DNA or it may be RNA. And the structure of these DNA and RNA at there in virus, they may be linear arrangement. Linear means this type of arrangement. Okay, this type of arrangement. It may be circular arrangement. It may be like this arrangement. Genetic material. It may be single or double strand. If it is single strand, it may be like this or it may be like this. If it is double strand, it may be like this or it may be like this. This is double strand. It depends upon the virus. ये वायरस पर निर्भर करता है कि किस वायरस में डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल या सिंगल स्टैंडर्ड है, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं वायरस में. नाउ फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है उसका टोबैको मोज़ेक वायरस का, और इसके बाहर इस तरह की ये है शीट लगी है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था और बाहर कवरिंग लगी हुई थी प्रोटीन की. प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड कहते हैं. ये कैप्सिड है और ये आरएनए है. लीनियर अरेंजमेंट में पर कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे. ठीक है, इसको सराउंड कौन कर रहा है? प्रोटीन की कवरिंग सराउंड कर रही है. तो ये कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस. इसमें जो आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड है और लीनियर अरेंजमेंट का, रेगुलर कॉइल्ड अरेंजमेंट है. लीनियर इस तरह से ऐसी अरेंजमेंट इसकी लीनियर है, सीधी है नीचे तक, पर है कैसी है? कॉइल्ड है. ठीक है ना. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल यहां पर आरएनए का है, यही वायरस का, यही क्रोमोसोम का काम कर रहा है.
उस तरह से रियो वायरस है, इसमें क्या है, आरएनए है यहां पर डबल स्टैंडर्ड है आरएनए, ऐसे डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। फिर बैक्टीरियोफेजेस में कैसा है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल एज ए क्रोमोसोम्स, डीएनए ये भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है, या ऐसे डबल स्टैंडर्ड होगा अगर राउंडेड होगा, अगर लीनियर है तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, दीज आर द फेजेस और यू कैन से वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट कोई लेक्चर में। तो यहां पर जो आपने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, अगर ये डीएनए मान लो, ठीक है ना, उसमें दो स्ट्रैंड्स है, ये दो, एक स्ट्रैंड पॉजिटिव एक्ट करेगा, एक नेगेटिव एक्ट करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें। इस जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वायरस में, उसको प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं। प्रो मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम। देखो ना, जो क्रोमोसोम आपने पढ़ा था, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत सा जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है। यहाँ पर खुद व खुद ये जेनेटिक मटेरियल है, और उस जेनेटिक मटेरियल में जीन्स तो है, आपको पता है क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन कहाँ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में होते हैं। स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो यहां पर जीन भी है, पर जीन का जो नंबर है दैट्स अबाउट 200 to 300, इसलिए ये छोटे हैं, तब इनको क्या बोल दिया हमने, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रोमोसोम्स। अब एक चीज यहां पर याद रखनी है, रेट्रोवायरस। व्हाट आर द रेट्रोवायरस? ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल एज ए आरएनए वर्क कर रहा है, वो रेट्रोवायरस है। अब क्यों रेट्रोवायरस बोला जाता है, होता क्या है यहां पर, मान लो ये किसी रेट्रोवायरस का आरएनए है, ठीक है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है, हम प्रोटीन सिंथेसिस का एक लेक्चर करेंगे, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस आती है। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस वेयर डीएनए आर कन्वर्टेड और डीएनए डायरेक्टली फॉर्म द आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। किससे बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब रिवर्स है, अब रिवर्स में क्या होगा, अब डीएनए से वापस क्या बनेगा, आरएनए से वापस क्या बनेगा, डीएनए। देखो ना, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना, ये बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसका उल्टा होगा, उल्टे में क्या होगा, आप यहां पर देखिए, अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है ना, जबकि होता क्या था, डीएनए से आरएनए बनता तो ट्रांसक्रिप्शन है, परंतु यहां उल्टा हो गया, आरएनए से क्या बना, डीएनए बना। किसके प्रेजेंस में एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जामिनेशन और एनी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर इस आरएनए से क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब ट्रांसक्रिप्शन से ये आरएनए में कन्वर्ट हुआ। जब ये आरएनए में कन्वर्ट हो गया, यहां आरएनए बन गया इस तरह से, या ऐसा आरएनए। उसके बाद अगर कोई भी बॉडी लग जाए, प्रोटीन की कवरिंग लग जाए, तो ये वायरस बन जाता है। कैप्सिड लग जाए तो ये क्या बन जाता है, वायरस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हमारे पास, HIV वायरस जो होते हैं वो कैसे हैं, रेट्रोवायरस है। दैट इज अबाउट द होल सम definitions, some important points regarding the viral chromosome। सिंपल सी बात है, वायरस का जो क्रोमोसोम है वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, आरएनए की फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। अब चलते हैं हम क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया और प्रोक्रिएट क्रोमोसोम। उसमें क्या होता है, वो और भी सिंपल है। अगर आप प्रोक्रिएट का स्ट्रक्चर देखें, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसमें सेंटर में एक इस तरह की बॉडी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड इज नेकेड बॉडी विदाउट न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
एक ऐसा पार्ट न्यूक्लियस का जो नेकेड है, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं लगी हुई है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इस न्यूक्लियोइड में क्या है? इन दिस न्यूक्लियोइड देयर आर प्रेजेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बनी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। वो उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे वायरस में पढ़ा, यहां भी बॉडी पड़ी हुई है, ये पड़ी है इस तरह से। डबल स्टैंडर्ड हो सकती है, राउंडेड है, डबल स्टैंडर्ड है, डबल कॉइल्ड है, डबल लेयर्ड है, डबल मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का। तो इसे क्या बोल देते हैं हम? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक इसी तरह की एक और बॉडी पड़ी होती है, किसमें? बैक्टीरिया में, उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसका छोटा रूप बोल सकते हैं, इसका जूनियर बोल सकते हैं। किसका? न्यूक्लियोइड का, बिल्कुल छोटा सा पड़ा। ये भी सीधा से होता है, डबल स्टैंडर्ड होगी, बहुत छोटी सी होगी, इसमें भी जीन्स प्रेजेंट है, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड? Who gave first time or who saw first time, who discovered first time plasmid? That is William Hay and Lederberg। इन्हें सबसे पहले देखा था। अब इसका काम क्या होता है? इट एक्ट एज ए कैरियर। व्हाट आर द कैरियर? जैसे आपने देखा ना, सामान ले जाती है कोई गाड़ी, ठीक है ना, तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस जो प्लाज्मिड है ना, बैक्टीरिया में यही काम है। आप बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड के बारे में बहुत सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग ऑफ द जीन्स। डिटेल में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में अलग से टॉपिक लेंगे, लेक्चर लेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें होता क्या है, जो ये प्लाज्मिड है, ठीक है ना, मान लो यहां पर इसमें जीन्स है। किसके जीन है? इस बैक्टीरिया के। कोई इंपॉर्टेंट जीन है, ये इंपॉर्टेंट जीन इसमें ट्रांसफर कर देगा ये दूसरे वाले सेल में, किसमें? जिसमें आपको जरूरत है। तो वो कैरियर हुआ, इसने कैरी किया अच्छे जीन्स और अच्छे जीन को ट्रांसफर कर दिया दूसरे सेल में। तो ये हेल्प किस में होता है? कैरियर में, एज ए कैरी करने में। किसको कैरी करता है? जीन्स को। कौन से जीन? डिजायर्ड, जो आपको चाहिए। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें एक और प्रोसेस, एक और टर्म आती है एपिसोम। इट इज द प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोम। अब हमारे पास ये क्रोमोसोम में अगर प्लाज्मिड इसके साथ अटैच हो गया तो हम एपिसोम इसको बोल देते हैं। किसके साथ? न्यूक्लियोइड के साथ अगर अटैच हो गया। अब ये जो जीन्स है, किस किस के जीन्स इसमें होते हैं? प्लाज्मिड में है एफ प्लाज्मिड बोलते इसको। अगर एफ जीन्स इसमें, एफ जीन किसके लिए? कंजुगेशन एक प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की इन बैक्टीरिया। उसको बैक्टीरिया के सेपरेट टॉपिक में लेंगे, ठीक है। वो फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको, एफ प्लाज्मिड बोलेंगे फिर, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर होंगे कंजुगेशन के लिए। आर प्लाज्मिड जिसमें रेजिस्टेंस जीन है। किसके लिए रेजिस्टेंस है? एंटीबायोटिक्स के लिए। तो इस तरह के ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन प्लाज्मिड में होंगे, उनके नेम पर प्लाज्मिड का नाम रखा जाता है। आर प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड या कोई और प्लाज्मिड। दैट इज अबाउट द chromosomes in bacteria and virus. Now what left in chromosome? That is the positions or shape, etc. अब types of chromosome on the basis of position of centromere. Centromere की पोजीशन के हिसाब से हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं इस तरह से। ये देखो, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तब इसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। मेटासेंट्रिक। अगर कहाँ है? सेंटर में है। अगर सेंटर से थोड़ा ऊपर को है, ठीक है ना, दो आर्म्स ये लंबी है, ये दो आर्म छोटी है, तब इसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे हम। सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर ए सेंट्रिक है, जब एक्सट्रीम टॉप पर है परंतु फिर भी छोटी आर्म रह गई है इसमें। छोटी आर्म हमारे को फिर भी दिख रही है, बहुत छोटी सी आर्म है, परंतु सेंट्रोमियर यहां पर एक आर्म बहुत ज्यादा लंबी है, एक निग्लेजिबल या बहुत ही छोटी है, तब इसको एसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद टीलो मींस बिल्कुल टर्मिनल पर। देखो यहां पर टर्मिनल पर क्या बना हुआ है? सेंट्रोमियर है, बिल्कुल पॉइंट्स की फॉर्म में। यहां पर क्या निकले हुए? दो आर्म निकले, पॉइंट की फॉर्म में, निग्लेजिबल फॉर्म में। और बाकी आर्म लगभग 99% केस का है
ये वाली आर्म का है, तब इसको टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। These are the 4 positions. After that, we can also divide our types of the chromosome on the basis of number of centromere. कितने centromere present है। अगर देखो मैक्सिमम जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक ही सेंट्रोमियर होता है, तो उसको हम मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। लगभग कॉमन है, ये सब प्लांट्स या एनिमल्स में ऐसा होता है। कुछ एक एनिमल्स या प्लांट्स कैसे होते हैं, डाइसेंट्रिक होते हैं, जिसमें 2 लगे होंगे। मान लो इस तरह से कोई और सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर ऐसा हो सकता लगा हुआ, एक दो, तो इसको क्या बोल देंगे हम, मेज। इसका एग्जांपल जिया मेज इज द बॉटनिकल नेम, ठीक है ना, उसमें होता है। पोली मीन्स बहुत से, अब एक सेंट्रोमियर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे बना दी इसने क्रोमोसोम। यहाँ है तो बहुत से लगे, राउंड वॉर्म में होता है। एसेंट्रिक, और इसको होलोसेंट्रिक बोलते हैं। होलो मीन्स खाली है, पूरी तरह से कोई सेंट्रोमियर नहीं है इस क्रोमोसोम में, तब इसको क्या बोलेंगे हम, होलीसेंट्रिक बोलेंगे। दैट इज अबाउट टुडे टॉपिक ऑफ द जेनेटिक। इट इज द 20th लेक्चर इन जेनेटिक। Now next time we will take long chromosome or large chromosome, that is Lamb brush chromosome and polytene chromosome. Thank you so much.